the OB days. Yes. Good afternoon, class. Yes, Vinay. Okay. Fine. Class, yesterday we discussed this introduction about the Constitution of India, right? I have discussed India is a democratic country. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था हम लोगों ने. Yesterday we just discussed the overview of constitution, right? कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिस्कस नहीं करा था हमने, केवल हमारा डिस्कशन एक नॉर्मल था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू this chapter number 1, Constitution of India. Yes, what is Constitution of India? To sum up, India is invested as an independent democratic state with the ideas of a welfare state and the policy of secularism. Other features of Indian Constitution also enable us to understand the structure of India polity. Right? Indian Constitution क्या है? India features क्या है India Constitution के? That India is a federal state with unitary features. Can anyone tell me what is the meaning of federal state? Yes, class. सेंट्रल और स्टेट में बटा हुआ है. Okay, and unitary? यूनिटरी हो गया जैसे चाइना हो गया, गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट. Okay. और उसके बाद और ये नहीं होता बेसिकली. इसमें क्या है? इंडिया इज अ फेडरल स्टेट मींस फेडरल स्टेट हैज डुअल अथॉरिटी सिस्टम. Right, as we have the dual authority system, the whole power lies in the hand of the central government. Central government is the head of the union powers, right? And all the policy framework has been made by the central government, and state government has also the powers, has also the right to take decisions related to the state. No state interference, no central interference will be done by the states. Although state can make interference in the state, central can make interference in the state, right? As you people have seen during the COVID time or during the lockdown time, as Modi ji has said, there is the first lockdown has been made by the Modi ji to all the states for the country, right? And that was the decision totally unitary, right? कि मोदी जी के पास था. बट एज वेल एज साइड बाय साइड एज हम कोविड से रिकवर होते रहे, सेकेंड वेव स्टार्ट होने से पहले और सेकेंड वेव स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम तक क्या हुआ, जो डिसीजंस थे वो हर स्टेट पे छोड़ दिए गए थे कि जिस स्टेट में कोविड की जैसी सिचुएशन है यू कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर्स. और जो भी हर स्टेट का कोविड अरेंजमेंट था, या वी गेट द इंस्ट्रक्शन, जैसे हमारे कॉलेज में होता है या कुछ भी होता है कि इंस्ट्रक्शन आती है सेंट्रली. ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमारे पास आती है, सब डिपार्टमेंट्स को बोल दिया जाता है कि दिस इज द कॉमन इंस्ट्रक्शन टू ऑल. फाइन, बट द वे यू वांट टू डू द मैनेजमेंट इट डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट्स कि बीटेक में कैसे मैनेज होगा, या बीबीए में कैसे मैनेज होगा, या किसी और डिपार्टमेंट में बीसीए में कैसे मैनेज होगा. फाइन. So as this in the same way, in federal state has dual authority system of central government and the state government. हमेशा federal system में दो government होती है, state and central. As we have state and central both, right? We have minister as a whole, Mr. Shri Narendra Damodar Das Modi, and we have a minister as a state, Mr. Manohar Lal Khattar, right? Next, states are autonomous and they manage their own affairs with limited intervention of the center. Yeah, there is a limited boundary, right? There is a boundary between the authorities for the central government to interfere in the matters of state. That's why the central wants to be their power in every state, wants their political leader or their ministers in every state so that they can work without any interference. As you people have seen the status of Punjab nowadays, what happened in Punjab before 1 day or 2, I suppose. तो वहां पे क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का ज्यादा होता है, तो ऑल द डिसीजन मेकिंग हैज बीन टेकन बाय द कांग्रेस पार्टी, राइट? देयर वाज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट
only for the information perspective that we have changed our minister, we send the details to the Prime Minister of India. Fine. So there is a limited intervention of the central government in that system. In a unitary state, union government has central authority with delegated powers to the state. Yeah, it is true also कि in unitary system we have the central government. हमारे पास एक central government होती है, like we have the Modi government and we have the president and prime minister, but they had also given some rights to the state governments too. ठीक है, हमने राइट्स भी दे रखे स्टेट गवर्नमेंट को. सो वी हैव द कंबाइंड framework of this federal system and unitary system. We do not say that we have a proper federal system of government in our country. No, we can say that we have a unitary system as a proper system in our government. We have the combination of both, as USA is a federal state and United Kingdom is an example of unitary government. So India is not a perfect federation like America. It has adopted the Canadian model. Fine. Basically, ये चीज हमारी कहाँ से ली गई है? In direct terms, Canada. Fine. Next है, India is a parliamentary type of democracy. What do you mean by a parliamentary type of democracy? So what is parliament? How can you define the parliament? Everyone has seen the parliament, I suppose. टीवी में तो देखी होगी, फिजिकली तो शायद ही किसी ने देखी, कुछ ने फिजिकली भी देखी होगी, बट पार्लियामेंट के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं. व्हाट इज इट? यस, एनीबॉडी? How can we define the लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. How it can be a law making institution? मैम जो भी नए लॉ वगैरह या बिल वगैरह जब पास होते हैं वो सारे पार्लियामेंट में ही होते हैं. Yeah, it is true. Yeah, you are very true कि India is a parliamentary type of democracy, means whatever we want to pass or we want to make some amendments in the constitution, or we want to add something in the constitution, or we want to change some change in the constitution, then it has to be done by the legislative body, right? All the जिनके पास वो rights होते हैं voting के through, वही वो चीज कर सकते हैं. In which parliament is the supreme legislative body of people representative. The president is the fountain head of justice and acts only on the advice of council of ministers, including the prime minister. Right? आपने देखा होगा whenever there is a showcase of this legislative assembly, the prime minister also sits on the same position, and sometimes it has been conducted by the speaker, and sometimes it has been conducted by the president of India, and by the authority of the president of India and the majority of the ministers or the members of the legislative assembly, the bill can only be passed and becomes a law. Right? Next is your इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फीचर है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन created three organs: executive, legislature, and judiciary. These three function independently but with coordination, right? One of the basic feature of the federal structure is independent judicial system. Supreme Court of India is the apex court with high court in each state. They act independently with the power of judicial review of the central and state legislation. What we have the judicial system divided into two parts, that is high court and Supreme Court, right? So high court is that type of court which is available in almost every state or every city. ठीक है, जो हर स्टेट में और हर सिटी में ऑलमोस्ट आपको मिलती है. बट सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट apex part of our constitutional system, in which the decisions taken by the High Court can be sued into the Supreme Court. But the decisions taken by the Supreme Court is the final one. You cannot take over that. Only the punishment of sentence can be heard by the President of India. Only he can sentence को रोक सकते हैं, but other than that किसी के पास कोई राइट नहीं है. Only the Supreme Court has the supreme authority to challenge the decisions of the High Court, right? केवल Supreme Court में आप ले जा सकते हो
बट एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि पहले जो हमारे केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट में होते, कहते हैं ना कि नहीं मुझे हाई कोर्ट से डिसीजन नहीं मिला, यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझा गया है, उसमें इस केस को जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, तो देन सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट में डिसीजन दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी से अबाइड हो गई है कि नहीं मेरे को भी उसी के लेना है. वो अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज को सोच के और डिसीजन दे सकते हैं, बट दे वर्क विद द कोऑर्डिनेशन. फाइन. Next is single citizenship. Yes, single citizenship means every person of the India, only our constitution offers only one citizenship. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल वन सिटीजनशिप देता है, चाहे कितने भी सिटीजन हो, डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पर नहीं चलती. ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का ही है. एज मैं इंडियन हूँ और मैं बोलूँ मैं अमेरिकन हूँ तो डेट इज नॉट पॉसिबल. आइदर यू मे बी अ इंडियन और यू मे बी अ अमेरिकन. ठीक है. नेक्स्ट आप बताओगे डुअल सिटीजनशिप कैसे हो सकती है. जैसे इसमें बोला है कि सिंगल सिटीजनशिप देती है इंडिया, तो हाउ कैन बी डुअल सिटीजनशिप भी होती है किस कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में. यस मैम, यूएस वाले में ड्यूअल सिटीजनशिप है. यस, वहां पे कैसे है डुअल की, लाइक यहाँ से इंडिया से कोई गया है, ठीक है, तो इंडिया से या किसी और कंट्री से मान लेते हैं, तो वहां पे जाके रहते हैं, मैरिड कपल है और वहां पे उनका बेबी होता है, तो जो मैरिड कपल्स हैं और उन्हें अभी तक वहां की सिटीजनशिप नहीं मिली थी अमेरिका की, तो क्या होगा कि उनके पास ऑलरेडी पहले से किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप होगी और सेकेंडली उनके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप हो जाएगी आफ्टर अ बेबी. तो दिस इज कॉल्ड द डुअल सिटीजनशिप. ये बट हमारी कंट्री ऑफर नहीं करती है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ओनली सिंगल सिटीजनशिप. नेक्स्ट इज एडल्ट फ्रेंचाइजी. इट इज वेरी एडल्ट फ्रेंचाइज इट्स वेरी कॉमन in that all the citizens of the age of 18 years and above have the right to vote irrespective of their caste, creed, religion, status, etc. means कि हमारे यहाँ पे जो राइट टू वोट है, वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, वेदर इज अ गर्ल और अ बॉय, तो वो राइट से शुरू होता है वोटिंग करने का 18 इयर्स ऑफ एज. ठीक है, 18 इयर्स से हम राइट टू वोट एलिजिबल हो जाते हैं. वी कंसिडर एज एन एडल्ट. राइट. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. दूसरा एक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे बहुत अच्छा है, डेट इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट. In other words, it recognizes certain rights of the people as basic as fundamental. The state cannot take them away ordinarily. Those rights are called fundamental rights. Every state has power. Central has power. हर स्टेट के पास पावर है, सेंट्रल के पास पावर है. After this, we all have powers with us. We all have power. We have the power of fundamental rights. We have our fundamental rights. According to our fundamental rights, we can do business anywhere. No state can say no to us, right? There is a restriction by every state. There are certain legal restrictions. There are certain things, but after that, if in the same country we can do any business anywhere, we can study in any part of our country. There is no restriction that the person belonging to that particular state. Yes, Ayush, please. मैम जहाँ तक राइट ऑफ बिजनेस ऑफ चॉइस की जहाँ तक बात है मैम, काफी सारे स्टेट्स में काफी अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं. ये Yeah, फंडामेंटल राइट कैसे हुआ? फंडामेंटल राइट्स तो जब हटाया ही नहीं जा सकता. रिस्ट्रिक्शंस तो बेटा ये फंडामेंटल राइट का यहाँ पे सेंस ये है, राइट टू डू बिजनेस एनीवेयर, कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है हर स्टेट में. लाइक ऐसे गवर्नमेंट जॉब हम लोग देखते हैं, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है, हम एक सेंट्रलाइज पेपर देते हैं, उसमें हमें कहीं भी मिल जाते हैं. या सपोज हमारी कोई स्टेट वैकेंसीज निकली है, अगर मैंने स्टेट वैकेंसी में हरियाणा का फॉर्म नहीं भर के मैंने किसी दूसरे स्टेट का फॉर्म भरा है, तो आई हैव द राइट टू डू द जॉब. तो वहां पे मेरी राइट होता है कि मैं वहां पे जाके जॉब कर सकती हूँ. ऐसा नहीं होता कि मेरा राइट नहीं है कि मैं वहां पे जॉब नहीं कर सकती. अब कुछ लोग ऐसे ही पर्टिकुलर स्टेट में अपना बिजनेस नहीं सेट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, इट मींस ये कि यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यू हैव द राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया.
आपके पास राइट है, आप कहीं भी रह सकते हो। अगर सपोज मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है हरियाणा में, मैं उत्तराखंड में जाके अपना कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ, मैं वहां पे जाके कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आई कैन गो देयर एंड कैन स्टार्ट माई सेटअप। जितनी भी फ्रेंचाइजी होती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी आके यहाँ पे सेटअप करती है अलग अलग स्टेट्स में। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरा कहने का मोटिव केवल आपका ये है कि इन द फंडामेंटल राइट्स स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, केवल एक लीगल प्रोसेस में होता है। अगर हम उस लीगल प्रोसेस को फुलफिल कर देते हैं, सपोज लाइक टुडे द रिक्वायरमेंट इज ऑफ आधार कार्ड, टुडे इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पैन नंबर, तो अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं और बियॉन्ड दैट देयर मे बी अ डिफरेंट थिंग और डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, तो अगर हम वो फुलफिल कर देते तो देयर इज नो इशू। Fine. Next is directive principles of state policy. Part 4th of the Constitution provides for the list of directive principles. These are the directions to the state. Unlike fundamental rights, these cannot be enforced against the state, but still these are fundamental in the governance of the country. So, considering fundamental rights are in the hands of us, ठीक है, but क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, दीज हैव बीन मेड बाय अस, ठीक है, वो बनाए गए हैं, हमारे लिए ही बनाए गए हैं, बट उनका जरूरी नहीं होता कि उनको फुलफिल करा जाए, ठीक है, ऐसी उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो हार्ड एंड फास्ट है कि यू हैव टू, बट दैट शुड बी कंसिडर इन योर माइंड, वो आपको समझने चाहिए। राइट्स उनका कुछ नहीं है कि वो एक आपके उसमें है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैम। बस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इतना ही है कि हर स्टेट की कुछ अपनी पॉलिसीज हैं, कुछ लिस्ट है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर फेडरल वर्सेस यूनिटरी। फेडरल में है हमारे the federal system has the features of dual authority, as we had discussed, union and state government, written and rigid. You cannot change so easily in that. Our constitution is also of such type that we cannot change the things in it on a very short notice. It takes a lot of years to change anything. Fine. Independent judiciary. एक अलग ही सेपरेट ही जुडिशियरी सिस्टम होता है। देयर इज नो डिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, मींस कि अगर वहां पे पहले डिसीजन आपको लेना, लाइक अगर हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रिलेशनशिप होगा कि पहले आपको अपना केस हाई कोर्ट में ही डालना है, देन ओनली, या कुछ आपको पहले हाई कोर्ट से ही करके आना है, देन ओनली द सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर। अगर कुछ ऐसा रिलेशन होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट, बट ऐसा independent judiciary means everyone has their own power, everyone can take decision individually. Like if you say I am the independent judiciary of my home, कि मैं जो कर रहा हूँ वो acceptable है to all the members of the family. Like in the same case we have the different judiciary system as on the name of High Court and Supreme Court, and they have the right. Fine. Next is distribution of powers between union and state, that we had done. Next is supremacy of the constitution. Constitution is on the supreme position, right? No one can challenge that beyond that. जो constitution में लिखा है, that is fixed, that is freezed, you cannot unfreeze it. Fine. Next is Indian constitution has all the above features which make it federal. Besides the above, it has some unitary features also. Example, citizen single citizenship. यहाँ पे हमारी क्या है, इसके अलावा हमारे पास यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ ओनली सिंगल सिटीजनशिप दैट वी हैव इन इंडिया। सेकंड, पावर टू मेक लॉ ऑन से स्टेट ऑब्जेक्ट ऑन नेशनल इंपॉर्टेंस, टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेट्रा। कि स्टेट ऑब्जेक्ट पे भी हम कुछ कर सकते हैं, कि स्टेट पे भी हम कुछ रूल बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, कभी नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब देश के ऊपर बात होती है, लाइक हमारे देश में कोई इमरजेंसी लगी हुई हो या कोई वॉर सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो इन दैट केस द सेंट्रल कैन डिसीजन फॉर द होल। लाइक सेंट्रल ने इस टाइम में क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि वी हैव द पैंडेमिक एक्ट। उस टाइम हमारे देश में क्या हो रहा था, हो रहा है पैंडेमिक है। पैंडेमिक की वजह से क्या है, there is a right of the central government to take decisions considering all the states. Fine. Next is power to declare emergency, both political and financial, and imposition of president rule in a state. कभी भी क्या कर सकती है यूनिटरी सिस्टम में, it can declare emergency. emergency declare हो सकती है। Fine. कैसी, political emergency भी and financial भी, और वो impose होगी by the president of India. Only President of India can declare emergency in the nation, according to our constitution. Fine. Next is power to
decide and demark territorial boundaries of a state. Only the state can define where the boundaries of that. अभी पीछे कुछ न्यूज में मैंने भी सुना था कि जो असम था और या गुवाहाटी, कुछ इसी असम गुवाहाटी, कुछ ही दो स्टेट में बाउंड्रीज को लेके भी इशू हो रहा था, एंड दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय किसके, मोदी जी के कौन रहते हैं हमारे मिनिस्टर हैं जो, अमित शाह। अमित शाह ने सॉल्व करा था। मुझे कोई बताएगा उन दो स्टेट्स में किसी में बाउंड्री इश्यूज आ रहे थे कि कौन से दो स्टेट की बाउंड्रीज में बहुत लड़ाई हुई दोनों स्टेट्स में आपस में? पहली बार मैंने भी ऐसा कुछ सुना था कि स्टेट बाउंड्रीज की वजह से भी कुछ इशू होते हैं। शायद एक आई सपोज वन वाज सिक्किम और असम, कुछ ऐसे ही था, सिक्किम असम गैंगटॉक, कुछ इन तीन स्टेट में, तीन में से एक तो था, कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट देयर वाज सम इशूज। तो only the state can decide where are the boundaries. Fine. Though India is structurally federal, it is unitary in terms of war, emergency, etc. So we have the combination of both the system, federal as well as unitary. Fine. Indian constitution differs in certain fundamental aspects from federal system of the world. The mode of formation explain this. अब जो हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है और जो अमेरिका में है, तो वी हैव द डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन दैट। इन अमेरिकन सिस्टम फेडरल यूनियन is formed by an agreement between a number of sovereign and independent states, surrendering a part of their sovereignty to a new central organization. In Canadian Federal Union, the provinces of a united state may be transferred into Federal Union to make it autonomous. American system में क्या है? एग्रीमेंट होता है सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में, ठीक है। बट कैनेडियन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड सिस्टम, जो पावर्स होती हैं फेडरल की, वो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट के थ्रू उनको ऑटोनॉमस कर सकते हैं कि वो अपने आप भी डिसीजन ले सकती हैं। इंडिया हैज थॉरोली सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेट अप अ फेडरल सिस्टम इन द मैनर एज इन द कनाडा। तो हमने भी किसका सिस्टम लिया है? हमने भी कनाडा सिस्टम लिया है, यूनिटरी एज वेल एज योर सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने नाम दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। जो हमारा ये वाला सिस्टम है वो कनाडा से लिया गया है बाय क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस यूनिट। ऑटोनोमस यूनिट भी बनाई है हमने जो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, कंबाइनिंग देम इनटू फेडरेशन बाय वन एंड द सेम एक्ट। और इसी एक्ट में हमने उनको कंबाइन भी कर दिया है कुछ पावर्स के साथ सेंट्रल की। सो इंडिया इज अ कैनेडियन टाइप ऑफ फेडरेशन एंड नॉट दैट ऑफ अमेरिका। सो इंडिया के पास कैसा सिस्टम है? कैनेडियन सिस्टम है, अमेरिका की तरह सिस्टम नहीं है। It in this context, it is relevant to quote Article 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat shall be union of states. जो इंडिया, जिसको हम भारत बोलते हैं, it is the union of state. It means it is made up of different unions, states. Fine. Next is your time क्या हो रहा है? Let me take the attendance first. Yes, class first. Give me the attendance. Yes, class. अभय सिंह राठौर, अभिनव, अभिषेक, अक्षत, अलीशा। प्रेजेंट मैम। अमन, अमित, अनिरुद्ध, अंकुर,
Anusha, Aryan Yadav, Yes, ma'am. Ayush Kumar, Yes, ma'am. मैम बाबू साहेब, आप मेरा बोल गए अमन. Aman. Yes, Babu Sahib. Yes, Daman. Devesh. Gaurav. Hemant. Hemant Saurabh. Ishita Bhatt. Yes, ma'am. Jatin. Present, ma'am. Kanishka. Present, ma'am. Karan. Kirti Sharma. Krishnan Avasthi. Yes, ma'am. Yes, 49. Mahesh Singh. Absent. 51. 56. Present, ma'am. 59. 60. Present, ma'am. 62. Yes, ma'am. 68. 69. 70. Present, ma'am. 72. 74. Present, ma'am. Priyanka. 75. 76. 78. 81. 82. 87. Present, ma'am. 89. 91. 92. 93. 97. Is Rupal present? Absent. Sagar. 899. 100. Present, ma'am. Present. 101. 102. Present, ma'am. 106. Present, ma'am. 109. Yes, ma'am. 111. Present. 112. Present, ma'am. 113. 116. 117. 118. 119. 120. यस मैम. मैम 17 प्रेजेंट है तरुण, उसकी माइक में दिक्कत है अभी. Yes, थैंक यू. 122. प्रेजेंट मैम. 123. 124.
124, 126, 127, 128, Present, ma'am. 129, Yes, ma'am. 130, 131, Present, ma'am. 132, 133, 134, 135, 36, 136, I'm roll number 15 present. just wait. Roll number 15. 15 तो है। अच्छा, पर एक मिनट। अमित गंभीर, Yes, ma'am. anyone other than Amit Gambhir? Yes, how is it? I'm 32. 32. Devesh Kumar Jha. Yes, ma'am. Okay, done. Anyone? Yes, Vinay. Vinay ने कल तो मैंने आपकी प्रेजेंट लगी है। आपकी बार आप लोगों के 2 मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स आल्सो। यस क्लास बोलता है कोई? Yes, ma'am. इकोनॉमिक्स Yes, भी है। ma'am. कैसी लग रही है इकोनॉमिक्स? मैम अभी तक तो सही है. ओके, पहले पढ़ी होगी 12th तक और 10th तक तो सभी ने थोड़ा पोर्शन Yes, तो ma'am. 10th तक। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में तो है प्रोविजन, बाकी मुझे नहीं पता, बट है थोड़ा तो पार्ट होता ही है उसमें इकोनॉमिक्स। और जिन्होंने कॉमर्स तो कोई है ही नहीं क्लास में, टिकट वाले आप लोग सब। कौन है? तरुण 117। तरुण आई हैव मार्क्ड योर प्रेजेंट। 15 इज हो गया है 98 सागर वर्ड्स। ये वाला सब्जेक्ट तो खैर मैनेजमेंट नहीं है, ये तो ओवरऑल सब्जेक्ट है, ये तो कोई सिविक्स का पार्ट है एक तरीके से। चलो देखते हैं इसमें और क्या है हमारे पास। इसमें हमारा है अब आगे डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। Next is our judicial view. The question as to whether the Indian Constitution is federal with unitary features or unitary with some federal features came up in various cases before the Supreme Court and High Court. The majority of the Supreme Court judges in Keshwananda Bharti versus the State of Kerala were of the view that federal features form the basic structure of the Indian Constitution. अगर हम जुडिशियल व्यू से देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडियन यूनिटरी सिस्टम है और वी हैव द फीचर सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव more features of feature systems comparison to the unitary system. Conclusion, preamble represent the vision of the people of India, कि इंडिया के पीपल क्या सोचते हैं अपनी कंट्री को लेके, कैसा वो अपनी कंट्री को चाहते हैं, कैसा वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चाहते हैं। Other parts of the constitution enable us to understand that India is a featural state with unitary features, right? इंडिया एक फेडरल स्टेट है जिसके अंदर कुछ यूनिटी फीचर्स भी हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विद फंडामेंटल ड्यूटीज आर द स्पेशल फीचर्स। वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और साथ में हमारे पास क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, विच एडेड ऑन एज अ
स्पेशल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आगे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हम इन सब की बातें कर रहे थे कि क्या होते हैं ये फंडामेंटल राइट। ये हम सिविक्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, द टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो वी हैव द 7 राइट्स ओवर देयर। These are right to equality, right to freedom and personal liberty, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, right to constitutional remedies. तो सभी के आर्टिकल दे रखे हैं। राइट टू इक्वालिटी इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 and right to freedom and personal liberty article 19 to 22. These are defined, means the right to equality is defined in the article from 14 to 18, right, and it is defined from 19 to 22. So right against exploitation is defined in article 23 and 24. Right to freedom of religion is defined in article 25 to 28. In same way, culture and educational right is defined in the article 29 to 30, and in constitutional remedies it is article 32. Fine. These are earlier the right to property under article 31 was also guaranteed as a fundamental right. पहले हमारा एक राइट और था जिसको हम बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हमने पढ़ा था राइट टू प्रॉपर्टी which was removed with 44 Constitutional Amendment Act 1978. Now it is only a legal right. पहला हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था जिसका यूज बहुत गलत तरीके से लोग करने लग गए थे, जो हमारे देश की प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंचाते थे, तो वो राइट हमने खत्म कर दिया है। इट हैज बीन अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. Constitutional Amendment Act 1978 will tells you about how to make amendments in the act. ठीक है, तो उसमें हटा दिया गया और इसको केवल एक लीगल राइट बनाया गया। मींस द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर है वो ही उसका ऑनर है। नो राइट हैज बीन गलत यूज कैसे? राइट टू प्रॉपर्टी का गलत यूज कैसे? जैसे क्या होता है बेटा कि हम यहाँ पे बोलते हैं इंडिया में हम रह रहे हैं, जितनी भी हमारे को प्रॉपर्टी लगती है कि कहीं भी कोई पार्क है या सड़क है कुछ भी है, तो लोग क्या करते थे उसका यूज नहीं करते थे। उस पे गवर्नमेंट ने क्या करा, वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, अगर आप उसको वहां पे गंदा करोगे या कुछ भी करोगे तो गवर्नमेंट आपसे फाइन ले सकती है। बट अगर हम ये राइट बना देंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी, हमें से क्या होगा कि ठीक है आप अपना घर गंदा रखो, आप अपना घर साफ रखो, उसमें आपकी अपनी हेडेक है, गवर्नमेंट आपको उस पर फाइन लगाने नहीं आएगी। फाइन, बट अब अगर गवर्नमेंट उस चीज को राइट टू प्रॉपर्टी बना देती तो क्या करते, लोग भी उस चीज में एक पार्टिसिपेंट हो जाते कि हाँ अगर हम किसी पार्क में बैठे, हम किसी उसमें बैठे तो हम नहीं दे सकते फाइन। बट वहां पे गवर्नमेंट का राइट हो गया है कि गवर्नमेंट से अगर वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है तो गवर्नमेंट कैन टेक फाइन फ्रॉम यू। बट राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट में दैट वाज नॉट फिजिबल। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, इसी वजह से। और कुछ लोग उसको गलत उसका वो भी लेने लग गए थे, एडवांटेज भी लेने लग गए थे, तो डेट्स वाई उसको हमने वहां से हटा दिया। और अब क्या है, ये एक लीगल टर्म बन गई है कि ठीक है अगर आपका घर आपके नाम है तो डेट विल ओनली बी बिलोंग्स टू यू। आप अपने घर में चाहे कुछ भी करो, बट जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है आप उसको कुछ भी, अगर आप किसी कल्चर हेरिटेज में जाते हैं उसको कुछ नुकसान पहुंचे तो गवर्नमेंट कैन टेक फाइन फ्रॉम यू। दिस इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। मैम ये पहले फंडामेंटल राइट था। हाँ। और आपने ही बताया फंडामेंटल राइट को सेंटर भी चेंज नहीं कर सकता। बेटा ये अमेंडमेंट के हुआ थ्रू तो कैसे? चेंज कर सकते हैं, उसके थ्रू तो चेंज कर सकते हैं। इसलिए बनाया गया है, उसको हटाने के लिए हमने प्रॉपर प्रोविजंस वो तो करे होंगे। इसको मैं आपको डिस्कस करेंगे इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट।